بیٹا ٹینسز جو ہے ہم آپ کو کچھ کلاس میں کروا چکے ہیں اور کچھ باقی بچتے ہیں، تو ان کو ذرا دوبارہ سے جو ہے بیٹا ایک ری ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کے قسم کی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور ان میں سے جو چیزیں رہ گئی ہیں بیٹا آپ لوگوں کی، اور جن پر بیٹا آپ لوگ اچھی طرح توجہ نہیں دے پائے تھے، ان کو دوبارہ سے بیٹا دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹینس بیسیکلی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اینی آف دا فارمس آف اے ورب کی کوئی بھی فارم جو دیٹ میں بی یوز ٹو شو، جو فارم آف ورب ہوگی نا وہ آپ کو شو کرے گی دا ٹائم، وقت جو ہے پریزنٹ پاس فیوچر جو ہے، اور دا اسپیکٹ ڈگری آف کمپلیٹنس اور انکمپلیٹ، مطلب انڈیفینٹ ہے، کانٹینیوس ہے، پرفیکٹ کانٹینیوس ہے، آف دا ایکشن، جو بھی ورب ایکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور اسٹیٹ ڈینوٹڈ بائی دا ورب، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ جو ہے ڈگری آف کمپلیٹنس یا انکمپلیٹنس وہ ہو جائے گا انڈیفینٹ، کانٹینیوس، پرفیکٹ۔ اس کے علاوہ بیٹا ٹائم جو ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم لیٹن ورڈ ہے ٹائمس بیٹا، اس سے ہے، ٹھیک ہے؟ ٹینس ورڈ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ٹائم ہے، اور ٹائم جو ہے بیٹا یہ ٹائمس سے ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم آف دا ایکشن میں بھی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جیسے میں نے یہ بتایا ابھی آپ کو، جو ہے اسپیکٹ آف این ایکشن میں بھی انڈیفینٹ، کانٹینیوس، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیوس، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو یہ دو چیزیں بتاتا ہے، ایک تو ٹائم اور دوسرا اس کا اسپیکٹ۔ شی پلیز دا پیانو، پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس۔ دا اسمتھس یہ فیملی کا نیم ہے بیٹا۔ انوائٹڈ اس آن اے ٹی پارٹی، پاسٹ انڈیفینٹ، انوائٹڈ ایچ ادر۔ ول اسٹارٹ اپ، یہ بیٹا فیوچر ہو جائے گا۔ مائی فادر ول اسٹارٹ اپ اے نیو بزنس، یہ بیٹا فیوچر میں ہو جائے گا۔ یہ بیٹا ورب فارمز ہیں جو مختلف ٹینسز میں یوز ہوتی ہیں۔ پاسٹ میں بیٹا انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم، کانٹینیوس میں واز ور اور آئی این جی، پرفیکٹ میں بیٹا ہیڈ پلس تھرڈ فارم، اور پرفیکٹ کانٹینیوس میں بیٹا ہیڈ بین پلس آئی این جی۔ پریزنٹ میں بیٹا انڈیفینٹ میں ورکس یا ورک، یہ ہم جانتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے؟ کانٹینیوس میں از ایم آر کے ساتھ آئی این جی۔ پرفیکٹ میں بیٹا ہیز یا ہیو، اور اس کے ساتھ بیٹا تھرڈ فارم جو ہے، ٹھیک ہے؟ اور پرفیکٹ کانٹینیوس میں ہیز، ہیو بین، اور اس کے ساتھ ورک۔ اچھا اب اس میں اور اس میں فرق دیکھ لیں جس فارم کا ہے، اس میں پہلی فارم ہے، اس میں سیکنڈ، لیکن ورک کی سیکنڈ فارم ورک کی سیکنڈ فارم ورک، اس کی سیکنڈ فارم واز، ایم کی سیکنڈ فارم واز، آر کی سیکنڈ فارم ورک، ہیز کی سیکنڈ فارم ہیڈ، ہیو کی سیکنڈ فارم ہیڈ، ٹھیک ہے؟ ہیڈ، ہیز کی سیکنڈ فارم ہیڈ، اور ہیو کی سیکنڈ فارم ہیڈ۔ اس میں ول شیل فرسٹ فارم لیتے ہیں، ول شیل ورک۔ کانٹینیوس میں چونکہ آئی این جی چاہیے ہوتا ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو بی ایڈ کرنا پڑے گا۔ آئی این جی فارم از ایم آر کے بغیر تو نہیں آتی، لیکن ہم جانتے ہیں ول شیل کے ساتھ آپ از ایم آر ایڈ نہیں کر سکتے۔ پرفیکٹ میں آپ کو ہیز ہیو چاہیے ہوگا، ول شیل کے ساتھ آتا ہی ہیو ہے، یہ ہم آپ کو کلاس میں کروایا تھا کہ جب کوئی ہیلپنگ ورب آ جاتا ہے یا ایون ٹی او ٹو آ جاتا ہے تو اپنے بعد ہیو ہی لیتا ہے، اور ہر ہیلپنگ ورب اپنے بعد آنے والے ہیو کو اپنے حساب میں ماڈیفائی کرے گا، یعنی از ایم آر لگائیں گے تو وہ ہیونگ کر دے گا، ہیز ہیو لگائیں گے تو آگے ہیڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ول شیل کیونکہ آگے فرسٹ فارم لیتے ہیں تو ہیو آ گیا۔ تو اس میں بیٹا پرفیکٹ کانٹینیوس میں ول ہیو یا شیل ہیو بین اور ورکنگ جو ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ادھر ہیز ہیو پریزنٹ کے اندر دونوں کنورٹ ہو کے پاسٹ میں ہیڈ ہو جائیں گے، اور فیوچر میں ول اور شیل کے بعد بیٹا کیا لگاتے ہیں؟ وہ آپ ہیو لگاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو یہ مختلف ٹینسز میں ہونے والی فارمز کا استعمال ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر بیٹا ہم نے ابھی پڑھا ہے، ہم اس میں بیس ورب کا استعمال کرتے ہیں، فرسٹ فارم آف دا ورب، جس میں آئی، وی، یو، دے، یا پلورل ناؤنز جتنے بھی ہیں یا پروناؤنز جتنے بھی، ان کے ساتھ بیس فارم آپ سمجھتے ہیں بیٹا، فرسٹ فارم کو کہتے ہیں آپ جو ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ اگر آپ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤنز لگائیں گے تو بیس ورب کے ساتھ آپ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ای ایس کا اضافہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ وربس جو سی ایچ، ایس ایچ، او ایس یا ڈبل ایس میں اینڈ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ایس لگاتے ہیں، ورنہ ہم ایسے لگاتے ہیں۔ ساری بیسکس ہیں بیٹا، آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح پڑھی ہوئی۔ اب بیٹا اس کی انڈیکیشنز ہیں، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس آپ کہاں پہ یوز کریں گے۔ سب سے پہلے سمپل پریزنٹ از یوز ٹو ٹاک اباؤٹ، ہم یوز کرتے ہیں بیٹا ٹائم لیس ٹروتھس۔ ٹائم لیس ٹروتھس جن کو ہم یونیورسل ٹروتھس بھی کہتے ہیں بیٹا، یونیورس، جیسے دا سن رائزز ان دا ایسٹ، دی ارتھ ریوالوز راؤنڈ دا سن۔ پرماننٹ سچویشنز جو ہیں، جو مستقل ہوتی ہیں بیٹا، جو چینج نہیں ہوتی، جو ریگولرلی ہیپن ہوتی ہیں یا مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ان کی مثالیں بھی آئیں، دیکھیں جناب، واٹ ڈو فراگس ایٹ، ایک جنرل فیکٹ ہے۔ جنرل فیکٹ جو ہوتے ہیں، جنرل ہیبٹس جتنی بھی ہیں
وہ ساری جو ہے بیٹا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ووڈ فلوٹس آن واٹر, ظاہر ہے اس کی ہیبٹ ہے. آئرن سنکس ان واٹر. اچھا جو ہے پھر آپ کہتے ہیں جناب دا ہندوز برن دیئر ڈیڈ باڈیز, جو یہ جنرل فیکٹس ہیں بیٹا, ٹھیک ہے, یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ہے. شارکس ریمبر آرڈنری, پھر یہ بھی ایک جنرل ٹروتھ ہے بیٹا, جنرل فیکٹ ہے. ایلائس ورکس فار این انشورنس کمپنی, اے پرماننٹ سچویشن. آپ کہتے ہیں آور اسکول اوپنز ایٹ 9 o'clock, ریپیٹڈ ایکشن ہو گیا یا پرماننٹ سچویشن, ایک ہی بات ہے بیٹا. He goes for the checkup every week, ریپیٹڈ ایکشن. جو ریپیٹڈ ایکشن کے لیے نا بیٹا آپ کو ایڈورب آف فریکوینسی چاہیے ہوتا ہے. جیسے یہاں پر یہ ایوری ویک ہے تو اس میں یوزلی, جنرلی, کامنلی, ٹھیک ہے جی, آلویز, یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہیں, یہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ٹائم لیس ٹروتھس ہو جیسے یونیورسل ٹروتھس, پرماننٹ سچویشنس جو ہیں, جو کامن فیکٹس ہوتے ہیں بیٹا آپ کے جو ہے وہ, یا پھر ریپیٹڈ ایکشنز ہیں جن کے اندر ایڈورب آف فریکوینسی. جنرل ہیبٹس آپ کی, آپ کے یونیورسل ٹروتھس جو ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا ایڈورب آف فریکوینسی, یہ ڈینوٹ کرتا ہے بیٹا کس کو, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو جو ہے. ٹھیک ہے, جنرلی اگین آ گیا بیٹا ایڈورب آف فریکوینسی, جو رینز ہیئر ان سمر جو ہے. دی ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن, ایکشن ہیپننگ آل دا ٹائم, یہ بیٹا آپ کا ٹائم لیس ٹروتھ ہو گیا, یا بیٹا آپ کا یونیورسل ٹروتھ جو ہے بیٹا یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا, سمجھ آ گئی آپ کو. یونیورسل ٹروتھس جو ہیں, ایڈورب آف فریکوینسی, ایڈورب آف فریکوینسی جناب ایک پرماننٹ سچویشن جو ہے. اچھا یہ جناب ایک جنرل فیکٹ ہے جناب, اور یہ بھی ایک جنرل فیکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. if the information is still operative, مطلب بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت پہلے ہوئی ہے لیکن وہ اسٹل ایکٹیو ہے, وہ ابھی بھی جو ہے آپریٹ کر رہی ہے. جیسے دا قرآن اسپیکس آف دا ٹیریبل فیٹ آف دا سینرس, ابھی بھی ہے بیٹا. سائنس ایکسپلینس لاز آف نیچر, ابھی بھی ہے, اسٹل ہے. ہیبیچول ایکشنس جو ہیں, ہیبٹ تو جو وہ تو ہوتی ہی بیٹا اس کے اندر ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ہوتی ہے. She never drinks coffee, never جو بیٹا اس کو ظاہر کرے گا ہیبٹ کو جو ہے. John gets up early in the morning. ویسے اس کے اندر جو ہے کوئی آپ کو شو نہیں ہو رہی, یہاں پر کوئی ہنٹ نہیں ہے اس کا, لیکن اگر جس کی بھی جو ہیبٹ ہے بیٹا وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ہوتی ہے. انسٹنٹینیس پریزنٹ, یعنی کہ ابھی ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ, جو اس وقت ہوئی ہے. ہیئر کمز دا ٹرین, دیر ہی گوز جو ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. ہسٹوریکل پریزنٹ جو ہے بیٹا, ان اسٹوری سم ٹائمز وی یوز پریزنٹ ٹینس ٹو گیو دا سینس آف ریئلٹی. دا کنگ enters the court and asks the guards to bring the prisoners. بیٹا بات یہ ہوتی ہے کہ جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے نا, یہ پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر تینوں کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے جنرل یوز تو اس کا پریزنٹ میں ہوتا ہے, لیکن اب پاسٹ کی بات جو ہے کوئی اسٹوری اگر وہ پریزنٹ میں بیان کر دیں گے تو وہ غلط نہیں ہوتی. فکس کیجولس اینڈ ٹائم ٹیبل, جو فکس ہوتے ہیں بیٹا, جیسے آپ کہتے ہیں جناب آپ کا اسکول کتنے بجے لگتا ہے, ظاہر ہے فکس ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے جناب, ٹرین جو ہے کتنے بجے پہنچتی ہے, جہاز کتنے بجے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, دا بس لیوز ایٹ 6 o'clock, دا پلین ارائیوز ایٹ 9, دا مووی اسٹارٹ ایٹ 3 PM. ٹھیک ہو گیا بیٹا. پرووربس جو ہیں بیٹا وہ آپ کی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوتی ہے. جیسے اٹ ٹیکس 2 to make a quart, money makes the mayor go, uneasy lies the head that weighs the crown. اچھا پرووربس ضروری نہیں ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ہو, سمپل پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے بیٹا. جیسے آپ کا جو ہے یونینی اسٹرینتھ ہے, اور اس کے علاوہ فیئرنس از آلویز ڈسیپٹیو ہے. یہ ساری پرووربس آپ کو بیٹا آنی چاہیے, ہم نے کلاس کے اندر لکھوائی ہوئی ہیں. ایڈوربز آف فریکوینسی جو ریپیٹڈ ایکشن کو ظاہر کرتی ہیں, پیچھے گزر چکا, پھر بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو سیپریٹ کر کے نا الگ سے لکھا. یوزلی, جنرلی, کامنلی, آلویز, ریئرلی, سم ٹائمس, یہ سارے بیٹا ایڈورب آف فریکوینسی. وچ یوزلی رینز ہیئر ان سمر, شی جنرلی اسپیکس دا ٹروتھ. ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو آپ کے جو جنرل ٹروتھس ہیں, آپ کے یونیورسل ٹروتھس ہیں, آپ کے جنرل ہیبٹس ہیں, آپ کی پرماننٹ سچویشنز ہیں بیٹا, آپ کے پرووربس ہیں, ایڈوربز آف فریکوینسی ہیں, یہ سارے بیٹا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. آگے ہے بیٹا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. پاسٹ انڈیفینٹ جو ہے اس میں ہم اگو, لیس, یسٹرڈے, ون ڈے, فکس ٹائم ٹیبل, اینی پاسٹ ڈیٹ اور ایونٹ جو ہے. اب آپ جیسے 2021 ہے, 2021 ہے, اس سے پرانا جو بھی ہوگا بیٹا وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ہوگا. اچھا, آئی وہ یو دے ہی شیٹ سنگولر, ان کے ساتھ سیکنڈ فارم بیٹا ہوتی ہے, اس میں کوئی یعنی کہ وہ ایس سی ایس یا اس طرح کا کوئی چکر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں گا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس ہیپننگ ایٹ اے ڈیفینٹ ٹائم ان دا پاسٹ. وہ کبھی ہوئی بیٹا. فنشڈ ایکشنس, وہ فنش ہو گئے,
रिपीटेड एंड लॉन्गर सिचुएशंस इन द पास्ट। देखिए अगर प्रेजेंट में रिपीटेड एक्शन है तो बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में जो होता रहा तो वो बेटा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होगा। ठीक हो गया? जैसे वही प्लेड क्रिकेट एवरीडे, ये पास्ट के लिए है। शी प्लेज क्रिकेट एवरीडे, ये प्रेजेंट के लिए बेटा। अब आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी अगर पेपर्स में आपको आ जाए एवरीडे, जनरली, यूजुअली, क्योंकि जनरली यूजुअली रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट भी हो सकता है, तो हमने बेटा प्रेजेंट को प्रेफर करना होता है पास्ट के ऊपर जो है। ठीक हो गया? ही मेट मी यस्टरडे, यस्टरडे तो किलोर बेटा पास्ट का था। अगो बिल्कुल जो है फ्यू डेज अगो हेल्प अ मैन इन द स्ट्रीट, वी वेंट टू मरी अ कपल ऑफ वीक्स अगो, अगो बेटा पास्ट। 1947 बेटा पुरानी कोई डेट आ जाए तो वो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है। आई स्पेंड ऑल माई चाइल्डहुड इन स्कॉटलैंड, लॉन्गर सिचुएशन बेटा पास्ट के अंदर है। जेसिका इनवाइटेड अस टू हर बर्थडे एवरी ईयर, रिपीटेड एक्शन है। अच्छा बेटा अगर आपको ये आ गया ना ये जेसिका इनवाइटेड या इनवाइट्स, तो आप फिर यहाँ पर इनवाइट्स को जो है वो करेंगे, पिक करेंगे इसको जो है। हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट जो है वी यूज्ड टू लिव हियर इन, इट इज बेटा ज़ाहिर है वो तो गुजर गया जो है। पास्ट में गए, यूज्ड टू सिट ऑन दैट बेंच, फार बेंच नियर द विंडो, ये बेटा वहाँ से उसने लिया है जो आपकी गुड बाय मिस्टर चिप्स है उसमें जो है। नंबर 3 फास्ट इंडेफिनिट इज कॉमन इन स्टोरी। अच्छा स्टोरीज में तो हम जब आपको स्टोरी का फॉर्मेट लिखवाते हैं ना और आपको समझाते हैं स्टोरी आपने कैसे अटेम्प्ट करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इसी के ऊपर होता है कि आपने बेटा पास्ट टेंस यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है लेकिन बेटा जो प्रेफरेबल है या जिसका कॉमन इस्तेमाल है बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट है। वन डे द प्रिंस डिसाइडेड दैट ही डिड नॉट लाइक स्टेइंग एट होम ऑल डे, सो ही टोल्ड हिज father that he wanted to get a job. A shorter action occurred during a longer action. एक लॉन्गर एक्शन हो रहा था, आप कार ड्राइव कर रहे थे, उसमें आपने एक शॉर्टर एक्शन किया, पानी पी लिया, आपने इधर उधर देख लिया जनाब, ठीक है, सोते हुए घर में कोई घुस आया। While he was driving, longer action जो है his car, he saw something on the road. The thief stole, shorter action जो है ना to while we were sleeping, ये longer action। Talking about nearer distance pass, नियर और डिस्टेंस पास। वैसे नियर पास के लिए जो होता है ना बेटा वो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ये माजी करीब होता है। ठीक हो गया? अब इसमें इन्होंने एक तकसीम कर दी है इन्होंने बेटा कि अगर रिसेंटली आ जाए, लेटली आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए तो वो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर अगो आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट हो। जैसे ही अराइव्ड अ मिनट अगो, अगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। अब अगो को अब रिसेंटली भी कह सकते हैं, अब रिसेंटली कहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो जहन में रख लें अगो लगेगा तो पास्ट इंडेफिनिट और रिसेंटली, लेटली, जस्ट नाउ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको जहन में रखिएगा। ठीक है जनाब? द ट्रेन लेफ्ट 5 मिनट्स अगो, ये वो हो गया जनाब, रिसेंट पास्ट हो गया, डिस्टेंस पास्ट हो गया। आवर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इफ वन क्लॉज इज इन पास्ट द अदर इज यूजुअली इन पास्ट। अगर एक क्लास पास्ट में दूसरी मून पास्ट में होती है, सवाई जनरल और यूनिवर्सल, तो उसका शी सेड दैट शी वाज इल, ये पास तो ये भी पास। शी सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, जनरल टू थर्ड प्रोवर्ब है। ठीक हो गया? ये प्रेजेंट में रहते हैं। जो सिचुएशन स्टिल ट्रू होती है बेटा वो आप उनको पास्ट में नहीं लेकर जा सकते। शी सेड दैट द बेयर डज नॉट टच अ कॉप्स, शी सेड दैट द अर्थ इज राउंड, शी सेड दैट द कुरान स्पीक्स ऑफ अ टेरिबल फेट ऑफ द सिनर्स। जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है बेटा इसमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म और ये माजी करीब होता है बेटा, जो काम अभी आपने हाल ही में कंप्लीट किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिग्निफाइज अ पास्ट टाइम एक्शन विद करंट रेलेवेंस, यानी जिसका असर अभी भी है। आपने फॉर एग्जांपल जो शी हैज़ ब्रोकन हर एल्बो, आप कहते हैं जनाब नाउ शी इज़ क्राइंग, अभी अभी उसका असर है जनाब। आई हैव कट माई फिंगर नाउ आई एम ब्लीडिंग, यानी कभी भी एक्शन है। शी हैज़ ईटन माई लंच, आपको लंच आपने खा लिया है और उसको मज़ीद लंच की ज़रूरत नहीं है, उसका एक्शन अभी भी है। अ स्टेट लीडिंग अप टू नाउ, जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो है करंट है, वैलिड है। आई हैव बिलीव्ड यू सिंस माई चाइल्डहुड, यानी अभी भी बिलीव है, बहुत पुराने से चलता आ रहा है, अभी भी आपको बिलीव। आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग, बुद्धो तो आप उसको जानते हैं। माई फादर हैव हैड हिज कार फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल हो गए हैं और स्टिल है आपके पास जो बेटा। ठीक हो गया? यानी कि सिचुएशन बहुत अर्सा पहले शुरू हुई लेकिन स्टिल आपके पास वो कैरी ऑन कर रही है। द रिजल्ट इज स्टिल ऑब्टेनेबल, यानी अभी भी इसका रिजल्ट ऑब्टेनेबल है। माई सन हैज सीन अ हॉरर मूवी रिसेंटली तो वैसे इसका वो आ गया जनाब जो है, यानी कि नाउ हिज स्लीप इज डिस्टर्ब। उसने मूवी देखी है तो वो परेशान है जनाब। हैव यू सीन द न्यू मूवी, द मूवी इज स्टिल इन द सिनेमा, यानी अभी भी चल रही है वो।
Has the postman left his bag? The bag is lying there. मतलब वो बैग वहाँ पर मौजूद है. All the apples have been eaten. There is none left. कोई बाकी नहीं बचा हुआ. ठीक हो गया. Result अभी भी obtainable है. The action is recently completed. ये मैंने अभी बताया आपको. Just now है बेटा. Recently है. Lately. इसके अलावा बेटा इसमें yet का इस्तेमाल भी होता है. इसके अलावा इसमें since और for का इस्तेमाल भी हो सकता है. often का इस्तेमाल भी हो सकता है. अच्छा, often गौर से सुनिएगा बेटा, ये बड़ी सुनने की बात है. often एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं. तो often प्रेजेंट परफेक्ट में भी है और इसमें भी है. अगर आपको फिक्र ऐसा आ जाए कि बेटा जिसमें वो दोनों दे दे तो आप फिर उसको प्रेजेंट डेफिनेट को चूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, फिक्र मैंने इसमें ऐड किया. शी हैज़ ऑफन कम या शी ऑफन कम्स लेट, तो प्रेफर करेंगे बेटा शी ऑफन कम्स लेट. ठीक हो गया बेटा, समझ में आएगी. तो दोबारा सुनिएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, एक तो जो अभी कंप्लीट हुए हैं, ठीक हो गया, और एक जिनका रिजल्ट स्टिल ऑब्टेनेबल हो. इस कन्फ्यूजन को मैं दोबारा क्लियर कर दूं बेटा कि अगर आप लगाते हैं अ मिनट अगो, हालांकि ये भी अभी कंप्लीट है, लेकिन चूंकि अगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अगर रिसेंटली लगा देंगे बेटा तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. अगर आप ऐसे लिख दें ही हैज़ रिसेंटली कम अ मिनट अगो तो फिक्रा गलत हो जाएगा बेटा. रिसेंटली और अगो का इस्तेमाल इकट्ठा नहीं होता. रिजल्ट स्टिल ऑब्टेनेबल है. रिजल्ट जो है अभी भी मूवी लगी हुई है वहाँ पर, जो है बैग अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ है. स्टेट लीडिंग अप टू नाउ, यानी कि आप पुराना काम हुआ, आप स्टिल आपके पास वो चीज़ मौजूद है जनाब, स्टिल आप उसको बिलीव करते हैं, वो कार है वो आपके पास अभी भी मौजूद है. ठीक हो गया बेटा. इसको दोबारा सुनिएगा, कहीं कोई मसला हो तो बेटा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ बेटा, अभी आगे चल रहा है. एडवर्बियल्स इंडिकेटर्स जो है, कौन कौन से एडवर्ब्स जो आपको बताएंगे कि जनाब पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बेटा देखिएगा गौर से. ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए यस्टरडे, अगो, लास्ट, अर्लियर, दिस, द अदर डे, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ऑन मंडे, अप टू नाउ, सिंस, फॉर, सो फॉर, हिदेरो, येट, जस्ट नाउ, इट इज़ द फर्स्ट टाइम. ये प्रेजेंट परफेक्ट में कॉमन एडवर्बियल्स यानी दोनों, टुडे, दिस वीक, रिसेंटली, वंस, बिफोर, यानी अगर ये आ जाएं तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अप टू नाउ, सिंस, फॉर, सो फॉर, हिदेरो, येट, जस्ट नाउ, इट्स द फर्स्ट टाइम, ये कॉमन एडवर्बियल्स यानी कि ये दोनों में आ सकते हैं. ये पास्ट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी दोनों आ सकते हैं. दिस, यू, ऑलरेडी, दोनों में आ सकते हैं. ठीक हो गया. अब बेटा जहन में रखिए कि सिंस फॉर तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेफर किया जाता है ना ये ज़्यादातर. तो अगर ये दोनों आ जाए ना, प्रेजेंट परफेक्ट की मिसाल भी आ जाए और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी आ जाए, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करेंगे. ठीक है. अब नीचे ज़रा कुछ सेंटेंसेस हैं बेटा, इनको देखिएगा. ही मेट मी लास्ट मंथ जो है वो, Alice went to the zoo the other day. She made a pancake earlier this morning. It is the first time I have made such a mistake. I have done nothing to help him so far. Her life in Edo has been devoid of adventure. ये बड़ा कॉमन एडवर्बियल्स हैं, यानी इनमें आप दोनों जो है वो लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट. वी वर्क, यू हैव हार्ड दिस टुडे, ही रिजाइंड, यू हैव रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस. दोनों बेटा यहाँ पे आ सकते हैं. पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है व्हेन देयर इज पास्ट इन द पास्ट, यानी माजी की बात करते हुए जब उससे भी पीछे आप जंप कर जाएं. अगर आप तरतीब में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट है. जैसे yesterday I got up at 6 o'clock, at 8 I took my lunch, and at 9 I went towards my college. My first lecture started at 10. At 12 we had a recess or break. जो भी अब तरतीब में चलेंगे तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट, तरतीब तोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट जो है. The past perfect tense is used to talk about actions, उन actions के लिए which happened, जो बेटा वाक़या बिफोर अनदर एक्शन, एक और एक्शन से भी पहले, आर इवेंट इन द पास्ट. यानी कि इवेंट आपने एक बात की, जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, अब ये पास्ट हो गया. व्हेन आई रीच्ड द एक्शन, द ट्रेन हैड गॉन, तो दूसरा एक्शन उससे पहले हो चुका था, बिफोर अनदर एक्शन. बोथ दिस एक्शंस हैपेंड इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली. ये इंडिपेंडेंट है, इनके आपस में कोई लिंक नहीं होता. इन द पास्ट, द फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन इज मेंशन्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, and the action finished in the recent past is mentioned in the past indefinite जो है. यानी कि जो recent past होगा वो past indefinite होगा, जो उससे पीछे चले जाएंगे तो वो past perfect हो जाता है. जैसे देखिए, when I reached the station the train had gone.
अब जो इसमें रिसेंट पास्ट वाला कौन सा स्टेशन पर पहुंचना है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है जनाब। और जो उससे पहले हो चुका जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक हो गया। अगर आपने सिंपल करना हो बेटा, तरतीब में चलते जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तरतीब तोड़ देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। आप कहते हैं जनाब के यस्टरडे वी स्टडीड उर्दू इन लेक्चर 1 एंड देन वी स्टडीड केमिस्ट्री इन लेक्चर 2, वी स्टडीड फिजिक्स इन लेक्चर 6, अब 2 के बाद 6 में आ गया, ठीक है, तरतीब में जा रहे हैं तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहें जनाब एंड वी हैड स्टडीड नथिंग इन लेक्चर 3, अब 6 के बाद तो 3 नहीं आता ना, तरतीब तोड़ दी ना आपने, ठीक है। तो जब तरतीब तोड़ते हैं बेटा आप, तो आप बेटा किस में चले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर जो है, ठीक है। इसकी एक और मिसाल आपको समझानी हो तो वो 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड वाली, या 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर वाली जो, once there lived 2 friends, they set out on a journey, they reached a jungle, they saw where one of them ran and climbed up a tree, past indefinite आ रहा है ना सारा। The other friend heard या had heard that the bear does not touch a corpse, क्या उसने उस वक्त सुना, या पहले कहीं का सुन रखा था बेटा, उसने सफर पर रवाना होने से पहले का कहीं का सुन रखा था, तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। We had completed our task before the time was over। अच्छा, अमूमन यही होता है कि बिफोर और आफ्टर वाली जो क्लॉजेस होती है ना, उनमें अगर एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरी पास्ट परफेक्ट में होती है, ठीक है ना। बाय द टाइम वाली भी, बाय द टाइम दे अराइव्ड मॉम हैड प्रिपेयर्ड द लंच, आई टोल्ड हर द पार्सल हैड नॉट येट, येट तो वैसे ही परफेक्ट के लिए होता है, तो जब पीछे पास्ट आ जाएगा तो आगे भी पास्ट बेटा, ठीक है। येट उधर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, इधर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आफ्टर दे हैड गॉन, ये देखो बिफोर और आफ्टर वाली बेटा। We watched a movie before dawn, the sailors had reached the shore, after they went to sleep we had watched a movie, ठीक हो गया। ये वही बिफोर और आफ्टर और सिंपल पास्ट वाला और साथ में बाय द टाइम। इसमें अगर एक क्लास जो है बेटा पास्ट में, दूसरी है पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, ठीक हो गया बेटा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट आफ्टर एज सुन एज व्हेन वंस जो है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, अगर ऐसा है कि 2 वाक़यात हुए हैं और उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप कंजक्शंस आफ्टर एज सुन एज व्हेन वंस पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट नेसेसरी, इन दैट केस उस केस के अंदर पास्ट परफेक्ट ज़रूरी नहीं होता। ये देखें, अभी हमने कहा, गौर से सुनिएगा कि आफ्टर और बिफोर के साथ अगर एक क्लॉज पास्ट में दूसरे में पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, वो उस सूरत में होता है जब टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा हो। अगर टाइम लैप्स इतना ज़्यादा नहीं है तो पास्ट परफेक्ट जरूरी नहीं होता। आफ्टर इट गॉट डार्क वी केम बैक, यानी जैसे ही वो ख़त्म हुई हम वापस आ गए। एज सुन एज जॉन रिटर्न होम हिज फोन रैंग, वंस ही स्टॉप्ड रनिंग वी स्टार्टेड टू गेम अगेन, व्हेन द बस कॉट फायर एवरीबॉडी जंप्ड आउट, यानी कि जैसे ही उसको हर किसी ने बाहर छलांग लगा दी। तो बेटा अगर यानी टाइम लैप्स से ज़्यादा ना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको पेपर में आएगा ये, फॉर एग्जांपल यही जो है व्हेन द बस कॉट फायर, या ऐसे आफ्टर इट गॉट डार्क जो है वी केम आउट, या एज सुन एज रिटर्न होम हिज फोन रैंग, या कोई और फिक्रा जो हमने पीछे पढ़ा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें टाइम लैप्स ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, अगर टाइम लैप्स ज़्यादा है तो आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। बेटा जब हमें कन्फर्म ना हो सिचुएशन में, बैकग्राउंड हमारे पास नॉलेज ना हो, तो हम फिर जनरली पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के साथ ले जाते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर होता आफ्टर इट खाली जगह डार्क वी केम बैक, ये गॉट ना लगा होता, नीचे ऑप्शन गॉट भी है, हैड गॉट भी है, तो हमें तो नहीं पता बेटा कि वो टाइम लैप्स कितना है, तो हम प्रेफर करेंगे हैड गॉट डार्क। क्या प्रेफर करेंगे? हैड गॉट डार्क वी केम बैक। समझ आ गई बेटा आपको बात की? इस फिक्र में देखें एज सुन एज जॉन रिटर्न्ड होम, इसमें क्लियर हो गया कि बेटा टाइम लैप्स नहीं है, बहुत कम है, तो कन्फर्म है। यहां क्या आएगा? फोन रिंग। एज सुन एज आपको बता देगा ये कन्फर्म है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर ये दोनों तरह ठीक है, फिर स्टूडेंट को जब बताया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आफ्टर इट हैड गॉट डॉक वी केम बैक, ये भी ठीक है। आफ्टर इट गॉट डॉक वी केम बैक, ये दोनों ठीक है। तो बेटा बात ये होती है, ये रूल्स जब आपको करवाए जाते हैं इस तरह के, और जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में उसको फॉलो नहीं किया होता तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मा वाला चैप्टर बेटा आपको याद होगा, उसमें नॉर्मा जो है वो कहती है, जो ऑर्थर है
बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड। देखिए दोनों तरफ उसने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, यानी इन दोनों क्लॉजेस में टाइम लैप्स बहुत कम है। समझ आएगी बात की, ठीक है। तो दोनों तरह से बेटा वो ठीक है, समझ आ गई आपको। लेकिन जब आपको कंफर्म ना हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे, पास्ट परफेक्ट प्रेफर करेंगे। However, we can emphasize that first action is an independent action completed before the second one. In that case, past perfect is necessary. अगर हम emphasize करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं कि first action जो वो independent action है, completed before the second one जो है, फिर आप past perfect जो लगा सकते हैं। As soon as he had finished his exams, he went to Paris. Once John had gone out to London, we started to live in different rooms. ठीक हो गया। अब again बेटा बात वही आ गई कि आपको तो नहीं पता फिक्रे के अंदर एम्फेसाइज की बात हो रही है या नहीं हो रही बेटा, तो आप उस सूरत में बेटा पास्ट परफेक्ट को तरजीह देंगे पास्ट इंडेफिनिट के साथ, यानी व्हेन के साथ, जनाब इसके अलावा आफ्टर के साथ बेटा, बिफोर के साथ जो है आप पास्ट परफेक्ट। अगर एक क्लास में पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरी में क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट। अगर एक में पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी में क्या कर देंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक हो गया बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बेटा देखिएगा, एन एक्शन भी एक जरा जायजा है, कंप्लीटेड इन द इंडिपेंडेंट पास्ट बट द रिजल्ट इज स्टिल ऑब्टेनेबल, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, यानी कि अभी भी उसका असर है। पास्ट इंडेफिनिट ये तो वो खत्म हो गया और अब आपको मतलब जो है उसका असर नहीं है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट जो है जब एक क्लॉज पास्ट में हो, दूसरी क्लॉज जो है वो उससे भी पहले हो चुकी हो, व्हेन देयर इज पास्ट इन द पास्ट, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए वी हैड इंस्टॉल्ड द सीसीटीवी कैमरास बिफोर वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, ठीक है। अब बिफोर के साथ एक क्लॉज किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरी किस में होगी बेटा, पास्ट परफेक्ट में। जो है नॉर्मा वाले चैप्टर के अंदर भी बेटा आपको याद होगा, आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, अब पास्ट परफेक्ट हो गया। आगे देखिए शी सेट डाउन टू ओपन द पैकेज, व्हेन देयर इज पास्ट इन पास्ट इट इज पास्ट परफेक्ट। जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फ़र्क जो है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है रिसेंटली कंप्लीटेड, जैसे हमने बताया इसमें रिसेंटली होता है। पास्ट इंडेफिनिट तो उसमें देर हो जाए या अगो आ जाए या इसके अलावा जो है एनी पास्ट डेट आ जाए जो है। पास्ट परफेक्ट जो है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अ सर्टेन मोमेंट टाइम इन द पास्ट, अली हैड टर्न्ड द हैज बिफोर सनसेट, यानी सूरज जब गुरूब हुआ तो वो जो है अपने हैज को ठीक कर चुका था जनाब, completed before certain time in the past. So when there is past in past, this is past perfect. Present continuous tense जो है बेटा, इसमें आई के साथ एम आई है जी, और ही शी के साथ बेटा सिंगुलर इज होता है, और प्लूरल और आई और वी और यू के साथ बेटा इसमें आईएनजी फॉर्म होता है। वो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट टेम्परेरी सिचुएशंस गोइंग ऑन नाउ, यानी इसमें नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एट दिस टाइम वगैरह बेटा होता है। हरी अप, वी आर वेटिंग फॉर यू, लुक अ डॉग इज चेजिंग अ कैट, मतलब इसमें एक टेम्परेरी कंटिन्यूअस सिचुएशन होती है। रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं, आई एम ट्रैवलिंग अलॉट दीज डेज आ जाए, नाउ डेज आ जाए, ठीक है। ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन नाउ डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, ठीक हो गया बेटा। ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस अगर होती हैं, द चाइल्ड इज गेटिंग बिगर ईच डे, हालांकि ईच डे तो हमने पढ़ा है कि वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसमें जो है वो प्रेजेंट बेटा जो है इंडेफिनिट लगता है, लेकिन ग्रेजुअल चेंजेस के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग डे बाय डे। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर के लिए भी है ना, आप कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल गो टू लाहौर टुमारो, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, ही इज गोइंग टू पेरिस आफ्टर अ फ्यू डेज। तो इसकी जो इंडिकेशंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की दोबारा सुन लें, नाउ, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ आर डेज, ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा ईच डे, डे बाय डे, अगर ग्रेजुअल चेंजेस हों, अगर आपको सिचुएशन क्लियर नहीं है, जैसे जनाब ही अब ईच डे जो है बेटा ये पास्ट में भी हो सकता है, रिपीटेड एक्शन जो है पास्ट में भी होता है, रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट में भी होता है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आप लगा सकते हैं। तो उस सूरत में जो प्रेफरेबल होगा आपके लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए प्रेफरेबल क्या होगा बेटा आपके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है। चार टाइप्स के वर्ब्स हैं बेटा, इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। हम इनको है ना उसमें यूज़ नहीं करते बेटा, आईएनजी फॉर्म के अंदर जो है कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग है, लुक, सीम, साउंड होते हैं,
verbs of thought है think, imagine, assume, let's suppose. verbs of perception है see, hear, touch, taste. verbs of emotion है love, hate, like, desire, wish, want. ये बेटा कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं है. तो जैसे grapes are tasting sure nowadays गलत, grapes taste sure nowadays बेटा ऐसे होगा. flowers are smelling sweet nowadays या now गलत, flowers smell sweet. past continuous tense जो है ये बेटा पास्ट कंटिन्यूस जो ऑल सिंगुलर नाउंस में प्रोनाउंस हैं इसमें वॉज के साथ आईएनजी, प्लूरल नाउंस में इसके साथ बेटा वर्ब के साथ आईएनजी जो है. पास्ट प्रोग्रेसिव होता है टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर इन प्रोग्रेस अराउंड अ पर्टिकुलर पास्ट टाइम. ये पर्टिकुलर पास्ट टाइम में ना उस वक्त इन प्रोग्रेस थी. व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग जो है. अभी हमने व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट भी लगाया तो बेटा याद रखिएगा व्हेन के साथ चूंकि ये इंटरप्शन के लिए यूज होता है तो पास्ट कंटिन्यूस प्रेफरेबल है. जैसे व्हेन आई रीच्ड होम द गेस्ट्स हैड लेफ्ट या द गेस्ट्स वर लिविंग, तो है दोनों ठीक है लेकिन आप प्रेफर किसे करेंगे बेटा, द गेस्ट्स वर लिविंग. समटाइम्स पास्ट कंटिन्यूस यूज एज अ बैकग्राउंड एक्शन और सिचुएशन विद पास्ट इंडेफिनिट. बैकग्राउंड जैसे मैंने अभी बताया आपको जब व्हेन द फोन रैंग व्हाइल आई वाज टेकिंग अ ब्रेक, इसमें व्हेन और व्हाइल दोनों इसकी इंडिकेशन है कि पास्ट के साथ है ना. एक क्लॉज पास्ट में और व्हेन और व्हाइल के साथ, तो दूसरी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जो है मोजार्ट डाइड व्हाइल ही वाज कंपोजिंग अ सिम्फनी. जो व्हेन ही अराइव्ड वी वर प्लेइंग कार्ड्स. ठीक हो गया जनाब. अच्छा एक बात बेटा और सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये तवज्जो करने वाली बात है बेटा. समटाइम्स है ना सिचुएशन में पता चलता है, सिचुएशन आपको बताती है. जैसे फ्रॉम द साउंड इट वाज क्लियर, गौर से सुनेगा फिक्रा. फ्रॉम द साउंड इट वाज क्लियर दैट अली प्रैक्टिस पियानो गलत, अली हैड प्रैक्टिस पियानो गलत, अली वाज प्रैक्टिसिंग पियानो. क्योंकि जब आप पहुंचे साउंड आ रही थी तो वहां से आपको बेटा पता चलेगा. ठीक हो गया जनाब. सो व्हेन और व्हाइल के साथ जब एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरी बेटा पास्ट कंटिन्यूस में ले जाते हैं और तीसरा सिचुएशन आपको बताती है. ओके बेटा अल्लाह हाफिज. कोई मसला हो कोई परेशान नहीं हो, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से सुनिएगा बेटा इसको. आप हमसे रब्ता कर सकते हो. बेटा अल्लाह हाफिज.